رہے ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے عربی گرامر مختصر کورس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے اب جو ابواب ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ ہیں ثلاثی مزید فیہ کے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ثلاثی مزید فیہ، تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ثلاثی مجرد ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی 3 حرف مادہ وہ ثلاثی مجرد ہوگا اور وہ ماضی ہوگا، لیکن ثلاثی مزید فی سے مراد یہ ہے کہ 3 حرف سے زائد 4 حرف، 5 حرف اور 6 حرفوں سے بننے والے حروف جو ہیں ان کو ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کی ضرورت کیوں؟ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں ایک لفظ ملتا نہیں، بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، لکھا نہیں جاتا، اور نہ اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ثلاثی مزید فی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے نعم، نون عین میم سے نام کے معنی اسم کے طور پر تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو مادہ ہے وہ نون عین اور میم، اس کے معنی ہوتے ہیں ہاں یا اچھا۔ یہ معنی اس کے سنے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، یہ کسی استفہامیہ کے جواب میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید میں سورہ فاتح میں یہ پڑھتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نون عین میم سے ہی ایک لفظ انعمت ملتا ہے، تو اس کے معنی انعام کرنا ہوتا ہے، انعام دینا ہوتا ہے، نعمتوں کے معنی میں بھی یہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ ثلاثی مزید فی میں اگر نون عین میم سے ہم دیکھیں تو یہ اس کی تا کی ضمیر لگی ہوگی، اور یہ الف جو ہے نون عین میم سے زیادہ مزید فی کا لفظ لگا ہوا ہے، ایک الف زائد ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک الف اس میں زائد ہے، اس لیے یہ لفظ ثلاثی مزید فی میں استعمال ہوا، ثلاثی مجرد میں اس مادے سے استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، جب ہم انفاق کہہ رہے ہوتے ہیں، انفاق،
इन्फाकुन कहिए तो इसका मतलब खर्च करना होता है। अब बज़ाहिर तो ये इसम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इसके माजी में हम जाएंगे तो ये हमें लफ्ज़ मिलेगा अनफाका युनफिकु। अनफाका, और अगर इसके मादे में हम देखते हैं तो हमें लफ्ज़ मादा मिल रहा होता है नून, फा और कौफ। इसके सलासी मुजर्रद में हम जाके देखें तो हम नफाका से देखें तो नफाका से हमें लफ्ज़ नहीं मिलता। अगर नफाका से आप किसी लफ्ज़ को देखें, नफाका से, तो वो लफ्ज़ निकलेगा निफाक, या लफ्ज़ निकलेगा मुनाफकत। ये अल्फाज हमें देखने में मिलते हैं, सुनने में मिलते हैं, पढ़ने में मिलते हैं, लेकिन जब हम इस अनफका से तर्जमे में देख रहे होते हैं तो अनफका युनफिकु में खर्च करने के मानी में आ रहा होता है। अब अगर नून फा काफ से हम इसम में या सलासी मुजर्रद में देखते हैं तो इन्फाक मिल रहा होता है और या निफाक मिल रहा होता है, मुनाफकत मिल रही होती है। तो इन्फाक खर्च करने के मानी में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए यहाँ देखते हैं तो सलासी मजीद फ़ी में ये अलिफ जो है ये इसका एक ज़ायद हरफ है, और ये इसलिए इसको हम कहते हैं ये सलासी मजीद फ़ी में का लफ्ज़ है, सलासी मुजर्रद का लफ्ज़ नहीं है। एक वजह तो ये बयान हुई कि सलासी मजीद फ़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक वजह ये बयान हुई। दूसरी वजह यह है कि एक लफ्ज़ हम देखते हैं उसके मानी के एतबार से खराजा हम देखते हैं ये फेल लाजिम आ रहा होता है, खराजा वो निकला, लेकिन जब हम इसको फेल मुतद्दी बना रहे होते हैं उसने निकाला तो खराजा से वो निकला फेल लाजिम होता है, वो फेल मुतद्दी में नहीं जाता। सलासी मुजर्रद में फेल मुतद्दी में ये लफ्ज़ नहीं जाता, तो इसके लिए हम सलासी मजीद फ़ी का सहारा लेते हैं। अखराजा युखरिजु। जब हम इस बाब इफ़ाल में जाते हैं सलासी मजीद फ़ी में, अब ये हम कहते हैं कि अगर इसका मादा खार, खा, रा और जीम है तो फिर खारा जीम से हमें यहाँ जो एक अलिफ नज़र आ रहा है ये मजीद फ़ी का लफ्ज़ है। इसी तरह हम और अल्फाज देखते हैं, ज़हाबा वो गया, अज़हबा वो ले गया, यानी सलासी मुजर्रद से सलासी मजीद फ़ी में जाने के लिए हमें सलासी मजीद फ़ी की ज़रूरत होती है। एक वजह तो ये पहले बयान हुई और दूसरी वजह उसकी ये बयान हुई कि फिर लाजिम से मुतद्दी में लफ्ज़ चला जाता है। तो ये दो वजूहात की वजह पर हमने देखा। तीसरी वजह इसकी और दिलचस्प है कि देखिए सलासी मुजर्रद में हमने किसी भी एक लफ्ज़ का आपको मस्दर नहीं बताया, हमने उसकी बुनियाद माजी का पहला सीगा बताया। मिसाल के तौर पर फ़ाला देखिए तो माजी वाहिद मुज़क्कर गायब ये हमने उसकी बुनियाद रखी, वही मादा के हरूफ थे और वही पहला सीगा था और वही पहला वज़न था, उसी को हमने बेस बनाकर उसी से हमने माजी पढ़ाया, उसी से हमने मुज़ारे पढ़ाया। लेकिन जब हम सलासी मजीद फ़ी में जा रहे होते हैं तो हम यहाँ पहले सीगे का सहारा नहीं लेते, ना हम उसको बुनियाद बनाते हैं, बल्कि हम इसके मस्दर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि ये मस्दर जो है उसकी वजह तो हमने अभी आपको बताई कि सलासी मुजर्रद के एक से ज़्यादा मस्दर बनते हैं, तो कितने मस्दर हम उनको याद करवाएं। लेकिन सलासी मजीद फ़ी का ज़रूरत भी इसलिए पड़ी कि इसकी उर्दू से बड़ी मुमासलत है, हमारी अपनी ज़ुबान से बड़ी मुमासलत है, और इसका मस्दर फ़कत एक ही बोला जाता है और उस मस्दर से ही उसके मानी आगे निकलते हैं। तो देखिए तीसरी वजह हम ये बता रहे हैं सलासी मजीद फ़ी की। पहली वजह तो ये थी कि लफ्ज़ नहीं मिलता, दूसरी वजह ये थी कि उसके मानी नहीं बनते,
और तीसरी वजह यह है कि उसका मस्दर जो है वो उसमें सलासी मुजर्रद में बहुत से निकले और इसमें इसका मस्दर एक ही होता है, इसलिए हमने सलासी मजीद फी की हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये तीन वजूहात के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसमें मसादिर के एतबार से और मानी के एतबार से और ख़ासियत के एतबार से क्या तब्दीलियाँ आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि सलासी मजीद फी में उसकी आपको एक मिसाल दूँ तो फिर इंशाल्लाह ये बात ज़्यादा निखर जाएगी। हम कहते हैं चाय पानी डालें, उसमें चाय की पत्ती डालें और फिर दूध डालें तो ये चाय बनेगी। लेकिन अगर आप उसमें चीनी डालें तभी वो रहेगी तो चाय, लेकिन जायका भी बदलेगा और उसका खासियत भी बदल जाएगी। अगर आप उसमें इलायची डालें तो जायका भी बदलेगा और उसकी खासियत भी बदल जाएगी। अगर आप उसमें दालचीनी डालें तो जायका भी बदलेगा, खासियत भी बदलेगी। तो अब सलासी मजीद फी के अबवाब पढ़ने से पहले मैंने अभी आपके सामने जो बात रखी कि सलासी मुजर्रद के अबवाब हमने देखे, बाब फातहा, बाब ज़राबा, बाब नसरा, वो हमने देखे फेल मुतद्दी आते हुए, और जब हमने बाब सामिया, हसीबा और करुआ देखे तो फेल लाजिम में हमें मिले। तो ये इस तरह फेल लाजिम और फेल मुतद्दी की तकसीम वहाँ होती चली गई। लेकिन यहाँ आकर चूँकि खासियत और उसका जायका भी तब्दील हो जाता है, इसलिए हम सलासी मजीद फी की मजीद आगे बात करते हैं। अगर सलासी मजीद फी का मजमून हमसे अरबी में ना पढ़ा जाए, ना समझ आ रही हो, तो यकीनन अरबी मुकम्मल नहीं होती। देखिए खासियत के एतबार से, खासियत और जायका, ये दो चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। हमारा पहला बाब जो है वो अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन। ये पहले बाब के एतबार से इसमें अबवाब की तादाद तो कुछ ज़्यादा भी कही जाती है, लेकिन हम इस नशिस्त में आपको सिर्फ 8 बाबों के बारे में बताएंगे। देखिए ये इफ़आलुन बतौर मस्दर है, इफ़आलन भी आ जाता है, इफ़आलुन भी कहा जाता है। मस्दर के एतबार से इफ़आलन ही पढ़ा जाता है, ज़्यादा 2 ज़बरों से ही पढ़ा जाता है, लेकिन इफ़आलुन भी कोई गलत बात ना होगी अगर हम उसे इफ़आलुन के तौर पर देखें। अब हम इसको देखते हैं, इसका इस्तेमाल पहले उर्दू में हम जितने भी नाम रखते हैं, एहसान रखते हैं, इकराम रखते हैं, इन्फाक रखते हैं, खर्च करना, इनाम रखते हैं, तो सारे इसी बाब से आ रहे होते हैं, इसके मस्दर से आ रहे होते हैं। मस्दर उर्दू में अक्सर बोला जाता है। अब हमें फ़ायदा इनका ये है कि एक तो उर्दू में ये मस्दर, चूँकि मस्दर एक ही होता है और उर्दू में आम बोला जाता है, और ये भी हमारे लिए एक आसानी की बात है। दूसरी बात इसकी, ये मैंने अभी आपके सामने अल्फाज के एतबार से उसकी पहचान रखी है, लेकिन जब हम पहचान के एतबार से आते हैं तो हम देखते हैं कि सलासी मुजर्रद का जो भी मुजारे हमने बनाया, चाहे आप बाब फातहा से बनाएं, चाहे आप बाब ज़राबा से बनाएं, या आप नसरा से बनाएं, बाब सामिया से बनाएं, बाब हसीबा से बनाएं, बाब कारुमा से बनाएं, तो उसका मुजारे ज़बर से बन रहा था। फातहा याफ्ताहु, ज़राबा यज़रिबु ज़बर से बन रहा था। लेकिन सलासी मजीद फी का जो अबवाब हैं उनका मुजारे हमेशा पेश से बन रहा होता है। देखिए मिसाल के तौर पर, यह मैंने अभी आपके सामने पहचान के तौर पर रखी है बात कि अफ़अला युफ़इलु, अहसना युहसिनु, अकरमा युकरिमु, अनफका युनफिकु, अनआमा युनइमु। पेश, अब इसकी पहचान हमारे लिए आसान हो गई।
दो एतबारात से पहचान उसकी आसान हो गई। एक हमने उसका मस्दर बोला जो आम उर्दू में बोला जाता है, और एक हमने उसकी अलामत मुजारे से पहचाना कि ये यकीनन आ रही होगी, सलासी मजीद फी से आ रहा होगा। लेकिन यहाँ आकर एक क्लैश की बात है कि अलामत मुजारे पेश का वो मुजारे मजहूल का भी बन जाता है। मुजारे मजहूल का मुजारे जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर ऐन कलमा ज़बर लेके आ रहा होता है। मुजारे मजहूल का जो जिक्र है हमने वो पहले भी किया था, लेकिन अब उसकी याद दहानी वास्ते, याद दहानी के लिए, क्योंकि हमने मुजारे की बहस आपके सामने की है, तो देखिए अफ़अला युफ़इलु, ये बाब इफ़ाल से आया युफ़इलु, और युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, अलामत मुजारे जो है वो तो पेश से आ रहा था, लेकिन ऐन कलमा सेकंड लास्ट कलमा अगर ज़बर से आ रहा हो तो वो मुजारे मजहूल होगा, और अगर ज़ेर से आ रहा होगा तो बाब इफ़ाल में होगा। इसमें अब हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं रही कि हम इसको कैसे पहचानें। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सलासी मजीद फी और सलासी मुजर्रद के, और सलासी मुजर्रद में हम देखते हैं कि मुजारे के जो मजहूल बन रहे होते हैं उनका वज़न एक ही आ रहा होता है। उसकी अभी तफसील में इंशाल्लाह आगे जाऊंगा कि जब उसका मजहूल बनाऊंगा तो फिर मैं उनका तफरीक, उसका फ़र्क ज़रूर बताऊंगा कि ये फ़र्क है। देखिए, ये हमने पहले बाब के बारे में सिर्फ पहचान के एतबार से आपके सामने बात रखी है। अब मैं चाहूँगा कि इसकी सरफ़े सगीर आपके सामने एक ही मरतबा आ जाए, ताकि एक एक बाब को हम बारी बारी डिस्कस करें और फिर हमारी बात मुकम्मल होती चली जाए, ताकि इसमें कोई इश्काल बाकी ना रहे। तो ये पहला सबक, यानी तमहीदन हमने जो सलासी मजीद फी की कुछ बातें की हैं, ये मुश्तरक बातें हैं जो सारे अब्वाब में आ जाएंगी।